رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا۔ جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہے۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے، دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئیں، میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، پاسٹ میں تھے کہا میں نے۔ آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔
میرے عزیزو ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے. جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں, محمد اللہ کے رسول. کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے, اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے, ابھی نہیں مان رہا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں, اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے. میرے عزیزو صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا, اولیاء نے بھی یہی پڑھا, تابعین نے بھی یہی پڑھا, ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کی ذات سے کروڑا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز, ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے. آج بھی رسول زندہ ہیں, کل بھی زندہ تھے اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے, معاذ اللہ, ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے. باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے, اب ختم ہو گیا ہوگا. باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا, گھر سے چلا گیا, اولاد بگڑ گئی. کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا. میرے عزیزو جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے, ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے. اللہ کے رسول ہیں. جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں, وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں, رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں. اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے, میرے عزیزو پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا, مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا. لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا, ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے. وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں, ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوؤں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا. اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا, اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع. یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے, ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں. یہ پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر, مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے, آوارہ پھرتے رہتے ہیں, جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے, اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے. اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں. ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے, پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں, رسول کچھ دے نہیں سکتے, یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں. وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا. وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے. اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا. اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا, وہ دکھا رہا ہے. میرے عزیزو جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا رسول ختم ہو گیا ہے, وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی, ادب سے کھڑا ہوا تھا. عزیزان گرامی وقار, اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں, اپنے ذہن میں. ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا, کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, ہم یہی کہتے ہیں. اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ
लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, ये आयत है पूरी। आप कुरान पाक उठाकर पढ़ सकते हैं, 5वें पारे में ये आयत। अल्लाह फरमाता है जब मोमिनीन अपने जानों पर जुल्म कर लें, यानी गुनाह कर लें, तो ऐ रसूल ये आपके पास आए। कुरान में है जाऊ का, ये लफ्ज है कुरान में। ये मोमिनीन क्या करें? ऐ रसूल आपके पास आए, अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। लेकिन तरीका अल्लाह ने कैसे बताया? पहले कहाँ आए? रसूल के पास आए, रसूल के पास आए और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करें। वस्तगफर लहुमुर रसूल, उस पर मजीद एक और शर्त है, रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें। बात समझ में आ रही? जब जब गुनाह हो जाए, तौबा और बख्शिश का जरिया अल्लाह ने जो बताया, कुरान की बात कर रहा हूं। जाओ ऐ रसूल, ये मोमिनीन आपके दरबार में आए, अल्लाह से बख्शिश मांगे और रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर वो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, रहम करने वाला पाएंगे। यह आयत है। अब मैं आपसे पूछता हूं, रसूल अगर खत्म हो चुके मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जैसा कि दूसरों का अकीदा है, मुर्दा है, तो कुरान जो कह रहा है कि मोमिनीन अपने जानों पर जुल्म करें तो ऐ रसूल आपके पास आए, तो क्या किसी मुर्दे के पास जाने को कुरान हुक्म दे रहा है? अब इसके जवाब में वो ये लोग कहते हैं नहीं, ये रसूल की जिंदगी में आयत आई थी, रसूल की जिंदगी में यह आयत आई थी, और जो उस वक्त गुनाह कर रहे थे उनको हुक्म था कि वो रसूल के पास आए, रसूल उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। मैं उनसे कहता हूं मेरे अजीज, फिर हमारा क्या कसूर है? कुरान क्या उसी जमाने के लिए उतरा था या कयामत तक के लिए आया है? कुरान कब तक के लिए है? कयामत तक के लिए। मेरे अजीज, कुरान की आयत सुबह कयामत तक के लिए है। ये सिर्फ उस जमाने के मुसलमानों के लिए आयत नहीं आई, सुबह कयामत तक के मोमिनों के लिए आयत आई है कि अगर तुम में से किसी से गुनाह हो जाए तो तुम कहां जाओ? कहां जाओगे? रसूल के पास। ये आप खुल करके बोलो, डरो मत कि कैसे जाएंगे, वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। मैं बताता हूं, उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन कुरान की बात है। अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर गुनाह हो जाए तो तुम कहां जाओ? फिर डर है आपको? कहां जाएं? रसूल के पास जाएं। अब रसूल के पास जाने के बाद दो काम हैं आपके, एक आपकी तरफ से, एक रसूल की तरफ से। आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे, रसूल आपकी सिफारिश करेंगे, तब आपकी तौबा कबूल होगी। अब आप सवाल आता है, हर एक की ताकत नहीं सफर करने की, कैसे जाएं मदीने? टिकट महंगा है, अब तो लॉकडाउन में वीजा भी नहीं लगता है। तो क्या अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा का हुक्म देगा? जो तुम नहीं कर सकते उसका हुक्म शरीयत में आता है। इस्लाम नाम ही है इस चीज का। अल्लाह बंदे पर इतना ही हुक्म डालता है जितना वो कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसका हुक्म नहीं आएगा। अब तुम सब लोग मिलकर के कहोगे कि हमारे आज जाने की ताकत ही नहीं, और अल्लाह ने हुक्म कैसे दे दिया? गुनाह तो आज सुबह भी हुए हमसे, दोपहर में भी हुए, शाम में भी हुए, और अल्लाह फरमा रहा है रसूल के पास जाएं। अब उस हिसाब से देखा जाए तो कभी टिकट मिले ना मिले, कैसे जाएं रसूल के पास? मेरे अजीजों, फिर तुम्हें हयातुन नबी का अकीदा और हाजिर और नाजिर का अकीदा लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ऐ अजीज, अल्लाह ने तुझे कब कहा कि तू चलते हुए, सफर करते हुए, इस तरह उड़ते हुए, ट्रेन में, बस में आ जा रसूल के पास? अल्लाह ने ये फरमाया बस तू रसूल के पास आ, चाहे जिस्म के साथ आ या तसव्वुर के साथ आ, चाहे जिस्म के साथ आ या तसव्वुर के साथ आ, हम तो कहते हैं हाजिर हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हम खड़े होते हैं तो यूं कहते हैं हाजिर हैं दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए। तुम जहां से कहोगे सरकार सुनते हैं। तो हाजिरी हो गई। यहां अभी आंख बंद कर लिया आपने, मुल्ला बाड़े की मस्जिद में बैठे हैं, गुनाहों से तौबा करनी है, कुरान की आयत पर अमल करना है हमको। अल्लाह ने फरमाया रसूल के पास जाने का हुक्म अल्लाह ने किया। अब मैं यहाँ बैठा, चल के जाने के लायक नहीं, आंख बंद कर लिया, मिनट भी नहीं लगे मदीने पहुंच गया।
मिनट भी नहीं लगे। ये कितनी तेज हाजिरी है। बारगाह रसूल में खड़े होने का तस्वूर ले आया और फिर सामने अपने रसूल को हाजिर पा करके अब तौबा करना शुरू किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अल्लाह तूने फरमाया गुनाह हो जाए तो रसूल के पास आ जा, मैं आ गया। अब तूने फरमाया बख्शिश तलब कर मुझसे, मैंने बख्शिश भी तलब कर ली, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ लिया। तीसरा काम है अब रसूल का, अल्लाह के रसूल सिफारिश करें। अब रसूल के पास तुम्हें कहना होगा ऐ अल्लाह के रसूल, हुक्म खुदा पर मैं आपके पास आया हूं और हुक्म खुदा पर मैंने इस्तिग़फ़ार भी कर लिया, बस आपके इस्तिग़फ़ार की, आपके सिफारिश की देर है और अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा। यही तो अकीदा बरेली का इमाम बार बार तुम्हें कह रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में आओ, यहाँ मेरे अजीजों गुनाहों की बख्शिश तलब करो और रसूल बेहिसाब देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सिफारिश को सुनता भी है और बंदों को पाक करके वहां से रवाना भी फरमाता है। अब इसकी दलीलें मैं देता हूं। एक और कुरान की आयत पढ़ करके मैं आगे आऊंगा कि रसूल इस वक्त भी माफ करते हैं कि नहीं करते हैं। कैसे पता चलेगा? आते हैं कि नहीं आते हैं, जिंदगी में हैं या नहीं है, इसको कुछ दलाइल से मैं साबित करूंगा। दूसरी एक आयत है कुरान पाक में और वो भी बहुत हौसला अफजा आयत है हमारे लिए, बहुत हौसला अफजा है। इसमें भी देखें आप, अरबी के ग्रामर थोड़े बहुत अगर मुसलमानों को मालूम हो तो कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह, कोई उनको बहकाएगा नहीं। मैं आपको तारीख बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला पहले की उम्मतें जब नाफरमानी करती तो अजाब आ जाता। कौम लूत पर बहुत भयानक अजाब आया, कौम समूद पर भयानक अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत भयानक अजाब आए, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत अजाब आए। सब कौमें जब नाफरमानी करती तो उनके अजाबात भी कैसे थे। बास कौमों को खिंजीर बना दिया गया, बास को बंदर बनाया गया, बास के लिए जमीन फट गई, सब अंदर चले गए, बास के लिए आसमान से पत्थर बरसाए गए, नोकीले पत्थर, वो बरसते थे तो उनकी खोपड़ियां पड़ जाती थी। तो ये सख्त तरीन अजाबात आए, लेकिन अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस गुनहगार उम्मत जिसमें हम और आप हैं, हमें एक तोहफा दिया। अब अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, अल्लाह ताला अब इस उम्मत पर वैसे अजाब नाजिल नहीं करेगा। अल्लाह की तरफ से है ये। तुम्हारे अंदर गुनाह आज भी वो सारे हैं जो पिछली उम्मतों में थे। लवातत भी है, आज नाप तोल में कमी ये भी है, जिना भी है, चोरी भी है। ये सब गुनाहों में जब वो कौमें मुलव्विस होती थी तो अजाब आता था। आज नहीं है अजाब, है खस्फ और मस्ख का अजाब। बाकी दूसरे अजाबात तो आएंगे, वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो बड़े अजाब, आसमान से पत्थरों के बारिश, खिंजीर की शक्ल बन जाना, बंदर की शक्ल बन जाना, सारे इंसानों की, ऐसा अजाब आया नहीं आएगा। रब ताला ने ये फरमाया अब इस उम्मत पर अल्लाह वैसा अजाब नहीं नाजिल करेगा। क्यों मौला, क्यों अब ऐसा अजाब नहीं आएगा? 9वें पारे की आयत सूरह अनफाल में अल्लाह फरमाता है व अंत फीहिम, इसलिए कि मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है, मेरा महबूब तुम्हारे दरमियान में है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने फरमाया व अंत फीहिम, आप इनके बीच में हैं। अब यहाँ पर भी वही कायदा है जो कलमे का मैंने बताया। रसूल को उस वक्त कहा गया था आप इनके बीच में हैं। वो 100 साल पहले भी हमारे बीच में थे, 1000 साल पहले भी हमारे बीच में थे, कल भी हमारे बीच में थे, आज भी हमारे बीच में हैं। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान हैं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कहाँ फरमा रहा है? कुरान पाक में। अगर तुम कहते हो रसूल नहीं है, मरकर खत्म हो गए, तो फिर मैं कहता हूं अजाब आ जाना चाहिए, अजाब आ जाना चाहिए, पत्थर बरसना चाहिए, कम से कम उन पे तो बरसना चाहिए जो रसूल को मरकर खत्म कर दिए। नहीं ना, उनके अकीदा रखने से रसूल खत्म तो नहीं होते। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं और इसी वजह से अल्लाह ताला ने भयानक अजाबों को रोक लिया है, भयानक अजाब रोक लिए गए हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यहाँ से ये बात साबित हुई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के दरमियान हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वान तफीहिम।
और एक बात मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात, मीलाद भी हम मना रहे हैं और मीलाद ही की ये तो मजालिस है ना, मीलाद की महफिलें हैं। अब यहाँ से कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। देखें, दुनिया का एक उसूल है, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जिसके लिए महफिल सजाते हैं, जब तक वो रहता है तब तक महफिल है कि नहीं? जब तक वो रहता है तब तक वो महफिल है। फॉर एग्जाम्पल, तकरीर सुनने के लिए ये महफिल आपने बनाई और मुझे सुनने के लिए आए। मैं चला जाऊंगा तो आप बैठे रहेंगे, थोड़े लोग अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे रहते हैं, लेकिन जो महफिल थी वो नहीं कहलाएगी। बाद में नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ रहे होंगे, जिक्र करने वाले जिक्र करें, मैं उनसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये महफिल चली जाएगी, क्योंकि मुकर्रिर गया, महफिल भी गई। दूल्हा आता है, दूल्हा के आने से पहले स्टेज भी सजा है, कुर्सी भी लगी है, बाराती भी खड़े हैं, सब इंतजार में है ना। दूल्हा आया, शाम तक रुका, दुल्हन को लेकर गया, बाराती अब क्या करेंगे? खाना भी खत्म हो गया, वहां हाल में रात तो नहीं बिताएंगे, चले जाएंगे। और डेकोरेटर क्या करेगा? डेकोरेशन निकाल लेगा, कुर्सी हटा दी जाएगी, स्टेज खत्म हो जाएगा। यही तो उसूल है ना दुनिया का। जिसके लिए महफिल सजी है वो जाएगा तो महफिल भी खत्म हो जाएगी। अब मैं आओ हदीस पाक सुनाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे जुल जलाल अपने रसूल से फरमा रहा है, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया वल अफलाक वल अरदी। ऐ रसूल, अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता तो ना मैं आसमानों को बनाता, ना जमीनों को बनाता, ना दुनिया को बनाता, कुछ नहीं बनाता अगर आपको दुनिया में भेजना ना होता। पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सारी कायनात मेरे महबूब के लिए सजाई है, अपने हबीब के लिए सजाई है। और रसूल आने वाले थे, उनके आने से पहले 1,24,000 अंबिया को बराती बनाकर भेजा गया है, इंतजार में भेजा गया है। आसमान का शामियाना ताना गया, जमीन का बिछोना बिछाया गया, सितारों की चमकाहट लगाई, जगमगाहट लगाई गई, चांदो सूरज को लाइटिंग के तौर पर कायनात में सजाया गया है। और यहाँ पर दरख्तों के फल पौधे सारे, ये सजावट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज फरमा दी। और इंसानों के भी एक अजीम झुरमट रखा। और उसके बाद अल्लाह का वो महबूब दूल्हा बनकर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आया, जिसके इंतजार में सारी कायनात थी। चांद भी उसी के इंतजार में था, सूरज भी उसी के इंतजार में था, आसमान भी उसी के इंतजार में है, जमीन भी उसी के इंतजार में है, अंबिया भी उसी के कसीदे पढ़ करके दुनिया से गए। अब वो रसूल दूल्हा बनकर के आया, अपनी हयात तय्यबा के 63 साला उस रसूल पाक ने जाहिरी जिंदगी में गुजारे। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, रसूल 63 साल के बाद अपने आप को पर्दा फरमा लिया, हमारे चश्मे आलम से रूपोश हुए। मुझे बताओ, दूल्हा दुनिया से गया है, मैं पूछता हूं चांद तू क्यों चमक रहा है? सूरज अभी क्यों बाकी है? जमीन क्यों अभी तक ठहरी है? आसमान का शामियाना क्यों लगा है? ये पेड़ पौधे अभी तक क्यों बाकी हैं? ये क्यों है? दूल्हा चला गया, डेकोरेशन खत्म होनी चाहिए, दूल्हा गया, सारी सजावट जानी चाहिए। तो तुम्हें चांद झिल्ला करके कहेगा, जलाल में सूरज कहेगा, नादान तू क्या समझ रहा है? दूल्हा गया नहीं, दूल्हा अब भी मौजूद है, दूल्हा अब भी मौजूद है। चांद का की जगमगाहट, सूरज का ये चमकना, तारों की झिलमिलाहट और पेड़ पौधों की खूबसूरती, ये समंदरों का लहलहाना, जमीन का बिछोना, आसमान का आशियाना, ये इस बात की गम्माज है, इस बात की दलील है कि दूल्हा अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। ये और बात है कि चंद आलम के लिए वो अपने आप को पर्दे में रखा है, फिर दूल्हा अपनी और आला शान के साथ कयामत के दिन रोनमा होगा। ये रसूल पाक की हयात की सबसे बड़ी मिसाल है। मेरे अजीजों, मैं कहता हूं दूल्हे के लिए सजाया गया था तो सजावट खत्म होनी चाहिए कि नहीं? सजावट खत्म हो जानी चाहिए थी। ये सजावट आज भी है। ये इसी की बात की दलील है कि वो दूल्हा आज भी मौजूद है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न, वो अगर नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मानना पड़ेगा सब कुछ है तो वो भी
हैं, सब कुछ है तो वो भी हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की। क्या है वो? जान है वो जहान की। अरे जान है तो जहान है। तुम सब जिंदा हो, अगर जान ही निकल गई तो तुम सब मुर्दा हो जाते। जान है वो जहान की। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या है? पूरी कायनात की जान है, और जान है तो जहान है। यही बात तो इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी भी फरमाते हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है उन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अरे जान अगर चली गई तो तुम क्यों जिंदा हो? जान है अब भी, और उसी जान की बदौलत ये गर्माहट भी हमारे अंदर है। अगर ये तपिश आप देख रहे हो, ये हरारत हमारे जिस्मों में देख रहे हो, तो उसी नूरे खुदा की बरकत है। वो रसूल पाक की तुरबत अनहर से छन कर आने वाली रोशनियां हमारे सीनों को आज भी मुनव्वर मुजल्ला की हुई है। इसीलिए तो मैं मेराज की शब के मुतालिक भी यही कहता हूँ, रसूल रात के वक्त सफर पर गए थे। कितना लंबा सफर किए हैं। सिर्फ अगर मक्का से बैतुल मुकद्दस का सफर नाप लें तो 1.5 महीने का सफर था, और उसके बाद आसमानों का सफर। खुद मेरे आका फरमाते एक आसमान से दूसरे आसमान की मसाफत 500 साल अगर घोड़ा दौड़े तो भी नहीं तय कर पाएगा। इस तरह 7 आसमानों का सफर, जन्नत व दोज़ख के नजारे, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम, सबका दीदार, फिर बारगाह इलाही में पहुंच, फिर उसके बाद वापस तशरीफ लाए। लेकिन यहाँ हैरत इस बात की हो रही है, रसूल जितना चाहे लंबा सफर करें, जब यह कहा जाता है जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम, ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब अकलें हैरान होती हैं, शॉर्ट टाइम में, इतने वक्त में बिस्तर गरम कितनी देर रहता है? 1 मिनट 2 मिनट? जंजीर दरवाजे की कब तक हलेगी? 1 मिनट 2 मिनट? 1 मिनट में 7 आसमानों का सफर, जन्नत दोज़ख के मुशाहिदे, ये सब कैसे मुमकिन है? तब बाज़ मुहक्किकीन ने यही कहा, मेरे अजीजों वो जाने कायनात है, वो जाने कायनात है। अल्लाह ने कायनात की जान को अपनी बारगाह में बुलाया था, तो कायनात का जो निजाम था, टाइम था, जहां था वहीं रुक गया। इसलिए कि जान नहीं है तो घड़ी भी नहीं चलती है। घड़ी में अभी 11 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, सेल निकाल लिया तो वहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी? और तुम 4 घंटे के बाद सेल डालोगे तो 4 बजे से नहीं चलेगी। कहां से चलेगी? 12 पे अगर सेल निकाला था, 12 से ही चलना है, इसलिए कि तुमने उसकी जान निकाली थी। अब जब जान डालोगे वहीं से चलेगी। मेराज की शब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने अपनी जलों में बुलाया, वो जाने कायनात को अपनी बारगाह में बुलाया। तो मैं कहता हूं वो सफर 500 साल का था कि 5000 साल का था या 5 लाख साल का था, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन कायनात को रसूल ने जहां छोड़ा था वो वहीं रुकी थी। जब वो जाने कायनात वापस आई तो जहां वक्त रुका था वहीं से फिर चल पड़ा। ये है मौजज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तुम्हें मानना पड़ेगा वो जाने कायनात हैं, वो असले कायनात हैं, वो मकसूदे कायनात हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब इस हैसियत को तुम समझोगे, तब फिर तुम हुजूर के हयात का इनकार नहीं करोगे। हुजूर पाक को मुर्दा, मरकर मिट्टी में मिलने वाला, इस तरह के जसारत वाले, जुरत वाले कलमात नहीं बकोगे। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए वो आम बशर नहीं है, वो नूरी बशर हैं और अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह ने जब अपने फरिश्तों को इतनी ताकत दी है तो अपने खास महबूब को कितनी ताकत दी। वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात में हैं। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा बाद वफात अगर ना हो तो सहाबा कभी हुजूर के पास नहीं जाते। एक सहाबी हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, नाम सुने कि नहीं? हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान रसूल हैं, सबसे पहले मदीने तय्यबा में हुजूर की मेज़बानी का शरफ हासिल करने वाले, और सहाबा में ये बड़े मोहतरम थे, मुअज़्ज़ज़ थे। सहाबा इनकी अदब भी करते थे। हुजूर पहले इनके घर क़याम फरमाए। एक बार ऐसा हुआ कि खुलफाए राशिदीन का जमाना खत्म हो चुका था। हजरत अबू अय्यूब थे उस जमाने में, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना भी खत्म हो चुका था।
تقریباً یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں ہیں حضور، وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے۔ حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے، لاک ڈاؤن والی سچویشن میں۔ سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی، لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ ٹائم کا پتہ جب چلے، جب باہر نکلے ہیں، مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے۔ وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی۔ اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی۔ عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی۔ مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہوں؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں، وہ اللہ کے ولی تھے۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوال یہ کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالیں، مصافحہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ، اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مصافحہ بھی کیا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں،
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تابعی 60 ہجری میں حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی. 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا. سیلاب میں پانی بہت زیادہ اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا, یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا. 3 قبریں تھیں اندر, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, یہ سب کو معلوم. ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا, پیر بھی دکھنے لگا. 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں, یہ حدیث پاک میں موجود ہے. اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے, اے آؤ مدینے والوں, رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے. تو سب جمع ہوئے, بھیڑ لگی. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زبیر کے بیٹے, یہ آئے, انہوں نے لوگوں کو ہٹایا, غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما هذه قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. اے عزیزو سوچو, عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو. تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے, جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے. جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو, اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں, نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں, اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے مجھے یہ چاہیے بھی تھا, اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں, کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں, میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں. چلو آسمانوں پر جانے کی بات بعد کی, بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے. اتنا تو مانتے ہو. مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا سنی مسلمانوں سب جانتے ہو. رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی. کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی. مجھے یہ بتاؤ, یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں. ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال, کسی کی 3,000 سال, کسی کی 2,000 سال, کسی کی 500 سال, سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں. وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں, داؤد و سلیمان بھی ہیں, موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم. نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے, وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے. اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر. حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں, آسمانوں میں بھی ہیں. اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے, میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا, موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا. یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو. اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے, زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے, میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں, خود احادیث سے ثابت ہیں.
दूसरे नबियों की जब जिंदगी साबित है तो रसूल की जिंदगी भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आओ अब सहाबा का ही अकीदा सबसे बेहतरीन अकीदा है ना, सबसे बेहतरीन अकीदा। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अकीदा पूछते हैं, आपका अकीदा क्या है रसूल के मुतालिक? सुने, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वफात पा गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, आपका दफन, आपकी तदफीन कहाँ हुई? वो हुजरे आयशा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा का वो मकान था, उसी में वो आराम फरमाती थी। हजरत आयशा के हुजरे में हुजूर की तदफीन हुई, सबको मालूम है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास ही चाबी रहती थी। हजरत आयशा कमरा खोलती थी, कमरे के अंदर जाती थी, सफाई करती थी। चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी कहाँ दफन हुए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी भी तदफीन का अंदाज भी ये है, उन्होंने वसीयत की थी, मेरा जनाजा हुजरे के सामने रख देना, अगर रसूल से इजाजत मिले तो दफन करना। 2.5 साल के बाद वफात हुई, हुजूर की वफात के 2.5 साल के बाद। कोई सहाबी ये नहीं पूछ रहा हजरत अबू बकर से इजाजत हम कैसे लेंगे, वो तो कब्र में है, किसी ने पूछा नहीं। हजरत अबू बकर ने वसीयत की, सबने कहा हाँ पूछ लेंगे। इसका मतलब है उनका अकीदा था रसूल। देखो मेरे अजीज हो, और हुआ भी है कि उनकी कब्र को हुजूर के पहलू में रखा गया। हजरत आयशा के कौन है? हजरत अबू बकर वालिद है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा के बाप हैं, वालिद हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके क्या हैं? शौहर हैं। हुजूर हजरत आयशा के क्या हैं? शौहर हैं। दोनों भी महरम हैं, दोनों महरम हैं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती, जब हजरत उमर दफन हुए तो अब वो उस हुजरे में जाना बंद कर देती, अब सफाई के लिए नहीं जाती थी। जब तक हजरत अबू बकर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत आयशा उस हुजरे में जाती थी, उस हुजरे में जाती थी। जब हजरत उमर उसमें दफन हो गए, आपने चाबी दूसरे के हाथ में दे दी और वहां नहीं जाने लगी। किसी ने पूछा, अम्मा आप पहले जाती थी अंदर हुजरे में, अब क्यों नहीं जाती? कहती हैं, रसूल मेरे महरम थे, अबू बकर मेरे महरम थे, उमर मेरे लिए गैर महरम है, मैं उनसे पर्दा करने के लिए नहीं जाती। मुझे बताओ अम्मा आयशा, पर्दे का हुक्म तो जिंदों के लिए है, पर्दे का हुक्म किसके लिए है? जिंदों के लिए। माँ आयशा सिद्दीका हजरत उमर के कब्र में जाने के बाद पर्दा कर रही हैं। इसका मतलब है आयशा सिद्दीका का अकीदा था कि उमर अपनी कब्र से उन्हें देख रहे होंगे। पर्दा किससे करेंगे? जो देखेगा ना। हजरत उमर जब हजरत आयशा को देख सकते हैं, अल्लाह के रसूल अपनी कब्र से पूरी उम्मत को क्यों नहीं देख रहे होंगे? है मेरे अजीजों, ये अकीदा सहाबा का है, एक दो नहीं, और भी चीजें मैं तुम्हारे सामने रखूं। अब आओ और एक दलील मैं बताऊं। हम और आप मर जाएं, हमारी बीवियां इद्दत गुजारने के बाद दूसरे से निकाह कर सकती हैं, है कि नहीं कर सकती? किसी औरत का शोहर इंतकाल कर गया, मर गया, तो इद्दत गुजारे 4 महीना 10 दिन, उसके बाद दूसरे से चाहे तो वह निकाह कर सकती है, इस्लाम ने इजाजत दी। लेकिन रसूल पाक की अज़वाजे मुतहरात की ये खुसूसियत है कि वो जिंदगी भर कभी किसी दूसरे मर्द से निकाह नहीं कर सकती। हुजूर की वफात के बाद भी कई अज़वाजे मुतहरात बाहयात रही, उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रही, काफी साल तक रही हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन किसी भी ज़ौजा ने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उनके लिए हराम था, कोई दूसरा उनसे निकाह नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था? वो भी तो औरतें हैं। सारी उम्मत की औरतों को मर्द की वफात के बाद इद्दत गुजार कर दूसरे से निकाह करने की इजाजत है, तो अज़वाज मुतहरात को क्यों नहीं? तो मेरे अजीजों, अकीदा ये बताया जाएगा, एक शोहर के होते हुए औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। नादान, तूने कैसे रसूल को मुर्दा समझा? वो आज भी रसूल की अज़वाज हैं, वो क़यामत तक रसूल की बीवियां हैं, कोई दूसरा मर्द उनका शौहर नहीं हो सकता। तुम और हम हैं, मौत के बाद रिश्ते खत्म हो जाएंगे, वो रसूल उनके ज़ौज हैं, शौहर हैं क़यामत तक, बल्कि जन्नत तक भी वो अज़वाज मुतहरात के शौहर हैं। ये दलील है इस बात की कि रसूल जिंदा है। जिंदा मर्द की मौजूदगी
मौजूदगी में औरत दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। और एक अकीदा यहाँ और भी मिलता है। और एक चीज मैं बताऊं, मियां बाग़ फिदक का मसला आज बहुत कुछ उठा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग उठ रहे हैं जिनको उड़ना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता। हाँ, ये इनको यूं समझ लें कि बारिश में बहुत सारे कीड़े आते हैं। इस वक्त शियों की तरफ से ये मसला उठाया गया। बाग़ फिदक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बाग था उनकी जिंदगी पाक में। आपकी वफात के बाद हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो हजरत अबू बकर सिद्दीक से सवाल किया कि मेरे वालिद का बागीचा था, हर एक के बाप के इंतकाल के बाद विरासत उसकी औलाद को मिलती है ना। अब हुजूर की औलाद में सिवाय हजरत फातिमा के कोई दूसरा था नहीं, विरासत में उनको मिलना चाहिए था बागीचा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिथु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो जमाअत है, हम विरासत में कोई माल नहीं छोड़ते, और जो कुछ भी छोड़ जाए वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता। रसूल की विरासत नहीं बांटी जाती। तो हजरत फातिमा वापस आ गई। इतना उनके दरमियान हुआ था, लेकिन यहाँ माथा पीट करके, सीना ठोक ठोक करके शिया सबको रुला रुला करके कहते हैं, हमारी माँ फातिमा का हक मार लिया था अबू बकर ने, सिद्दीक ने जो है बाग़े फिदक खा लिया। है जालिमों, तुम इतना समझते हो कि अबू बकर अगर हक खा लिए होते तो हजरत अली उस वक्त कहाँ थे? अली को क्या तुम बुज़दिल आदमी समझते हो? हम सुन्नियों से पूछो, हम उनको शेर खुदा कहते हैं, वो हैदर कर्रार कहते हैं, जो अपने एक बाजू से खैबर का किला उखाड़ दे। अबू बकर सिद्दीक अगर गलत फैसला ले रहे होते, वो तन्हा अली ही काफी होते। हजरत अली ने जब हदीस सुनी तो उनका भी ये इकरार था, अबू बकर ने जो कहा है वो रसूल पाक की हदीस है। अगर गलत फैसला अबू बकर कर रहे होते तो हजरत फातिमा का हक वो लेकर के रहते। हजरत अली का खामोश रहना इस बात की अलामत है कि सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने जो फरमाया वो गलत नहीं था। अब यहाँ हम ये नहीं कहेंगे, बाज ये मामलात निकले हजरत अबू बकर खता पर थे कि हजरत फातिमा खता पर थी। नादानो, तुम होते कौन हो उन दोनों के दरमियान खता नापने वाले? इन दोनों को खता पर वो कहेगा जो उन दोनों से बड़ा होगा। फैसला कौन करेगा उनके दरमियान की बातें? उनसे जो बड़ा होगा। मैं ये मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह खुद ही फैसला फरमाएगा जो भी मामला उनके दरमियान रहा। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जगह पर हक थे, फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी जगह पर हक थी। दोनों हक पर हैं। हम इनमें से किसी को भी गलत नहीं कहते, बल्कि इनके मुताल्लिक जुबान खोलने को भी हम अपनी ईमान की तबाही समझते हैं। यही अकीदा रहना चाहिए, यही अकीदा रहे। अब आओ मेरे अजीजों, ये बात हो गई, बाग़ फिदक का मसला है और दीगर चीजें भी हैं। हुजूर की विरासत क्यों नहीं बांटी गई? नबी की विरासत क्यों नहीं दी गई? अब उसको एक आशिक रसूल ने अपनी किताब में यूं बयान किया, कहा है, मियाँ जो कुछ भी विरासत बढ़ती है वो इंसान के मरने के बाद। जिंदगी में अगर मैं कुछ बेटे को दे दूं तो इसको विरासत नहीं कहते, इसको कहते हैं हिबा, ये बख्शिश है, ये दे दिया बाप ने। मौत के बाद विरासत बढ़ती है। जाहिर सी बात है, बाप को घर में रखा और विरासत की बात कर रहे हो तो नहीं, ये विरासत नहीं है। तुम जायदाद की लड़ाई कह सकते हो, विरासत नहीं। बाप को कब्र में दफन करके आए उसके बाद विरासत बढ़ती है। एक आशिक रसूल ने क्या खूब कहा, विरासत मरने के बाद मुर्दों की तकसीम की जाए, वो विरासत को तकसीम करे मेरे रसूल की जो रसूल को मुर्दा तस्लीम करे। हम तो रसूल को जिंदा समझते हैं। कायनात के हर चप्पे पर आज भी वो मालिक व मुख्तार हैं, आज भी वो मालिक हैं। तो मालिक के होते हुए विरासत के बांटने की जरूरत क्या है? फातिमा के बाप आज भी बाग़े फिदक के मालिक हैं। हमारा अकीदा तो ये है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आखिरी बातों की तरफ आता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की
विरासत नहीं तकसीम की गई, इस बात की अलामत है कि वो हम में जिंदा है। यही अकीदा है ना, रसूल पाक हम में जिंदा हैं, वो अपनी कब्र अथर में जिंदा हैं। वो जिंदगी का, उस जिंदगी की कैफियत क्या है ये अल्लाह बेहतर जाने, वो कैसी जिंदगी है। लेकिन हमें इतना मालूम है अल्लाह ताला ने यहाँ मौजूदा जो जमीन पर जिंदगी होती है, इससे हजारों लाखों दर्जे अफजल जिंदगी उनको कब्र अथर में अता किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं, आज भी दस्तगीरी फरमाते हैं। ये अलग उन्वान है कि अब रसूल मदद करते हैं कि नहीं करते, बस इतना समझ लो कि जिंदा हैं तो मदद भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिनके लिए मर गए उनके लिए मदद भी नहीं है। हम तो कहते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दस्तगीरी करने वाला, मदद करने वाला तस्वुर करके ही तो ये शेर पढ़ते हैं ना आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दरूद, बेहुनरो बेतमीज किसको हुए हैं अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दरूद, तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या तुम पे करोड़ों दरूद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसलिए कि हमारे साथ अल्लाह का रसूल है। अब एक आखिरी बात जो मैं कहने जा रहा था वो ये है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद में शरीक हुए, तकरीबन 17 जिहाद आपने फरमाया, 17 गज़वात में शरीक हुए। तो जिस जंग में हुजूर तशरीफ ले जाते हैं उसको गज़वा कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़वा। और जिसमें हुजूर नहीं शरीक थे, सहाबा गए थे, उसको सरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये दोनों डेफिनेशन याद रहना चाहिए। बदर में हुजूर थे बनफ्से नफीस, तो उसको क्या कहेंगे? गज़वे बदर। जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अथर के साथ शरीक रहे, जैसे जंगे उहद, उसको भी क्या कहेंगे? गज़वे उहद। गज़वा कहते हैं जिसमें हुजूर शरीक रहे। लेकिन एक जंग का तज़किरा मिलता है गज़वे हिंद। ये मसला छेड़ते ही कुछ लोगों के पेट दुखने लगते हैं आज। हाँ, लेकिन ये हदीस पाक है, बहुत सारे पंडित डिस्कस कर रहे हैं गज़वे हिंद होने वाला है, गज़वे हिंद होने वाला है। हाँ, वो डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हदीसों की किताबें पढ़े होंगे। अच्छी बात है, तुम पढ़ करके ही डरते रहो। ये और बात है कि सुन्नी अभी तक सोए हुए हैं, मुसलमान अभी तक सोए हुए हैं। हमारे पास तो कोई ऐसी चीज दिखती नहीं है, लेकिन ये अल्लाह ही की मदद है, अभी से डर है। खैर, मैं उन तमाम चीजों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन इतनी बात है कि गज़वे हिंद क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक गज़वा होगा, 2 गज़वों के बारे में हुजूर ने जन्नत की बशारत दी। एक कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतह करने वाला लश्कर, और एक हिंद में आखिरी वक्त क़यामत के करीब एक गज़वा होगा, उसमें शरीक जितने होंगे हुजूर फरमाते हैं बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर मैं जी लिया अपना सब कुछ बेचकर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा। कौन कहते हैं? हज़रत अबू हुरैरा। अब वो गज़वे की डिटेल फिर किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गज़वे की डिटेल फिर कभी अर्ज करता हूं, लेकिन मुझे यहां पर बात ये करनी है, ये क़यामत के करीब होने वाला है, क़यामत के करीब होने वाला, और उसको कहा क्या जा रहा है? गज़वे हिंद। और गज़वे की डेफिनेशन मैंने क्या बताया? जिसमें रसूल पाक, तो ये तो अभी हो रहा है। गज़वा कैसे? मुहद्दिसीन ने कहा ऐ लोगों घबराओ मत, उस गज़वे में भी रसूल तशरीफ लाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूहानियत के साथ जलवाबार होंगे, इसलिए उसको जंगे हिंद नहीं कहा गया, गज़वे हिंद कहा गया है। गज़वे हिंद कहा गया, इससे पता चलता है कि रसूल क़यामत तक जिंदा हैं और जंगों की क़यादत भी करेंगे इंशाअल्लाह।
हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा को यकीन के साथ रखो मेरे अजीजों। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मदद भी फरमाते हैं। इस अकीदे के साथ जियोगे, बहुत सारी चीजों में तुम्हारे तमीज आ जाएगी, बहुत सारी चीजों में सुधार आ जाएगा। बल्कि आपको ये भी बात मैं बताऊं, हर जुमेरात को हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल मेरे पास पेश किए जाते हैं। क्या मुर्दों के पास अमाल पेश किए जाएंगे? हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत के अमाल में हर जुमेरात को देखता हूं, अच्छे हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूं, बुरे हो तो अल्लाह की बारगाह में इस्तिगफार करता हूं। मेरे आका हर जुमेरात अपनी उम्मत के अहवाल सुन रहे हैं, फरिश्ते पहुंचा रहे हैं। अब भी अकीदा नहीं तुम्हारा कि रसूल जिंदा हैं, हमारे अमाल भी देख रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, अब इस अकीदे के साथ उठो, ये जुमेरात आएगी तो खैर मनाओ, कहीं मेरे बुरे अमाल मेरे आका के पास ना चले जाएं, हुजूर की बारगाह में मेरी बुराइयां, मेरे गुनाह ना पेश किए जाएं। इसलिए जुमेरात आने से पहले पहले तौबा कर लूं, कुछ नेकियां कर लूं, ताकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अच्छाइयां पेश की जाएं। इसीलिए बुजुर्गान उम्मत का ये तरीका रहा है, वो जुमेरात के दिन रोजा रखा करते थे। पूछा जाता क्यों रोजा रखते हो जुमेरा, तो ये कहते आज रसूल के पास अमाल जा रहे हैं, अगर आज जाएंगे तो रसूल को फरिश्ते ये भी बताएंगे फलां का बेटा या रसूल अल्लाह आज रोजे से है, मेरे आका की बारगाह में मैं रोजे के आलम में पेश होना चाहता हूं। मेरे अजीजों, ये सारी दलीलें हैं इसी बात की, या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।